everyone. Good morning, respected teacher and my dear friends. First of all, thank you for giving me this opportunity and introduce myself. Myself Smyra from BSc 4th semester. So today I'll speak a PPT presentation on my topic non-verbal communication. So this picture shows communication to share ideas, concepts, etc. अपनी तरफ स्लाइड करना है. So first of all, what do you understand by communication? Communication is a way to individual to interact with each other. Since the evolution of human mankind, that is as expressing by the thoughts and ideas. In early stage, human communicated in different even before the development of language. In ancient time, language was not well defined. People still found ways to communicate and collaborate. One of the major communication in non-verbal communication, that means communication without words. So, my question is, what is communication? Communication is derived from Latin word communis, that is to share. Share of ideas, concepts, feelings, emotions, etc. So, communication has been two types, verbal and non-verbal. This picture shows verbal and this non-verbal. Difference between verbal and non-verbal. वर्बल में हम किसी को अगर कोई भी बात कहनी है तो हम बोल के कर सकते हैं, और नॉन वर्बल में हम विदाउट यूज ऑफ वर्ड्स. इसमें हम किसी को भी बोल के अपनी बात को व्यक्त कर सकते हैं, और नॉन वर्बल में हम सीधा आई कांटेक्ट से भी अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं. सो व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, दैट मीन्स कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स. सो is it possible communicate without words? Anybody? Yes, it is possible. Half of our message carried out through non-verbal elements, that appearance, body language, gestures, tone, voice. Next. Non-verbal types. इसमें नॉन वर्बल में क्या है, हम फेशियल एक्सप्रेशंस भी कर सकते हैं, गेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, टोन, साउंड्स, क्लोजनेस, बॉडी कांटेक्ट, हैंड मूवमेंट्स. सो 5 मेजर फॉर्म्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. फर्स्ट इज proxemics. This term defined by Edward T. Hall. What do you understand by proxemics? Proxemics is the study how people use space in the communication. It examines how physical distance affects interactions, social behavior and personal comfort. Developed by anthropologist Edward T. Hall. इसमें भी 4 कैटेगरी डिफाइन है. Intimate space, that is for close relationships like family, romantic partners. पर्सनल स्पेसेस में फ्रेंड्स और इनफॉर्मल कन्वर्सेशन. सोशल में प्रोफेशनल, कैजुअल वगैरह. पब्लिक में पब्लिक स्पीकिंग एंड लार्ज गैदरिंग. सो दैट इज सेम. इसमें मैं ये एग्जांपल देना चाहूँगी, अगर कोई व्यक्ति किसी से बात कर रहा है, वो ज़्यादा क्लोजली बात कर रहा है, तो हम ये नहीं मान सकते कि उनका कोई रिलेशनशिप एज ए फ्रेंडली भी बात कर सकता है. उनका क्या पता कल्चर ही ऐसा हो. तो कोई व्यक्ति अगर किसी से दूर ही रहता है, ज़्यादा दूर है, तो ज़रूरी तो नहीं कि मतलब वो ऐसा ही है, क्या पता उनका कल्चर ऐसा हो. तो इसमें ये चीज़ भी डिफाइन की गई है. Proxemics is the study of physical space in interpersonal relationship. Different types of space. This picture shows different types of spaces, that is intimate, personal, social and public. नेक्स्ट काइनेक्सिस. इसमें भी आगे फर्दर है, जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशंस, गेस्चर, आई कांटेक्ट, बॉडी मूवमेंट,
वॉइस, टाइम, टच, पैरा लैंग्वेज। नेक्स्ट, फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। जैसे अब ये पिक्चर्स शो कर रही है सभी, अगर हम हंसकर बात कर रहे हैं, जहाँ हमें कोई खुशी है किसी बात की, तो वो खुशी हमारे चेहरे पे साफ दिखाई देती है। अगर हम सैड हैं तो सैड भी हमारे चेहरे पे दिखाई देती है। नेक्स्ट, गेस्चर। लेट्स योर बॉडी टॉक ऑन योर बिहाफ। हमारी जो बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के जो हाव भाव है वो हमारे शब्दों से ज्यादा असरदार हो सकते हैं। दिस पिक्चर शोज गेस्चर एंड पोस्चर, कि हाथों से इशारे करके कैसे हम अपनी बात को व्यक्त कर सकते हैं, जैसे ऑल द बेस्ट, वेट, थम, गुड, ऐसे। नेक्स्ट, आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट इज also important in maintaining the flow of conversation and watching the other person interest response. This picture shows eye contact. Next, main feature, eye contact occurs when two people look at each other. It signifies interest in what another person how to say. आंखें जो कि व्यक्ति की एक आत्मा की खिड़की होती है. It refers to window to the soul. जैसे ये पिक्चर क्या शो कर रही है, ये जो दो बातें कर रहे हैं इनका क्या सीधा आई कांटेक्ट हो रहा है. इससे पर्सन क्या है अपनी कोई भी जो बात करनी है वो एक्सप्रेस आराम से कर सकता है. आई कांटेक्ट के थ्रू भी हम अपनी जो कि कम्युनिकेशन ये नॉन वर्बल की कर सकते हैं. नेक्स्ट, बॉडी मूवमेंट. दिस पिक्चर शोज अ बॉडी मूवमेंट इंक्लूडिंग पोस्चर, गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट. इसके थ्रू भी हम अपने कोई भी इमोशंस, अटेंशंस वगैरह कन्वे कर सकते हैं. नेक्स्ट, ट्रोनिमिक्स. ट्रोनिमिक्स इज द स्टडी ऑफ द रोल ऑफ टाइम इन कम्युनिकेशन एंड हाउ वी यूज टाइम टू कम्युनिकेट. ट्रोनिमिक्स वो है कि कैसे हम संचार के समय में कम्युनिकेशन की महत्व को बता सकते हैं और कैसे हम टाइम को यूज कर सकते हैं संचार के समय में. नेक्स्ट, रोल ऑफ वॉइस इन कम्युनिकेशन. इसमें हम ये कह सकते हैं कि हम अगले बंदे से कैसे बात कर रहे हैं, कि हमारी वॉइस कैसी है, ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं या हम कैसे मतलब गुस्से से बात कर रहे हैं. दिस पिक्चर शोज इट्स नॉट जस्ट व्हाट यू से बट हाउ यू से दैट इट्स मैटर. नेक्स्ट, टच और पैटिंग्स. It is a form of non-verbal communication that conveys emotions, build relationships, and can signal affections, comfort, support, or even dominance depending on the context, intensity of the touch. This picture shows the touch or patting. जैसे माँ अपने बच्चे को प्यार कर रही है, इसको शाबाशी दे रही है, और ये जो कि दो फ्रेंड्स आपस में गले लगे हुए हैं, दैट इज इनका भी अपना ही एक कम्युनिकेशन है कि हम कैसे किसी को अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज पैरा लैंग्वेज. पैरा लैंग्वेज इज द वॉइस, इनोटेशन, बोलने का अंदाज दैट अकम्पनीज अ स्पीच इंक्लूडिंग वॉइस पिच. आपकी लय और रिथम कैसी है ये भी इसमें मैटर करती है. What do you mean by paralanguage? Paralanguage refers to the non-verbal elements to communication that accompany spoken language and help convey meaning, emotions and intent. जैसे कि इसमें tone of voice. आप ऊंची आवाज में बात कर रहे हो, हाई और लो साउंड वेरिएशंस इन स्पीच, वॉल्यूम, लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ स्पीच, आपके बोलने की स्पीड कैसी है, ये चीजें. नेक्स्ट है आर्टिफैक्ट्स. इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आर्टिफैक्ट्स आर फिजिकल ऑब्जेक्ट्स और आइटम्स. आर्टिफैक्ट्स में ये है कि कोई भी पीपल जो कि कोई भी व्यक्ति जो अपने मैसेज को पहुंचाने के लिए किसी भी चीज़ों का इस्तेमाल करता है, जैसे कि क्लोथिंग, एक्सेसरीज, एनवायरमेंटल डेकोरेशंस.
This is all about my PPT presentations. Thank you.